السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صاحب آپ لوگ سب مائک آن کریں، دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری یسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میری اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل ہم نے نیا سبق شروع کیا تھا، سبق کا نام تھا مد۔ مد بولتے ہیں کھینچنے کو۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کی پوری شکل بھی بتائی تھی۔ میں ایک بار پھر آپ کو تھوڑا بریف کر کے آج ہم پریکٹس کا پیج پڑھیں گے، اس کا ہے نا، اس کا جو ہے میں آپ کو لمبا ہو گیا جی۔ کل ہم جو سبق پڑھے اس کا نام تھا مد۔ مد مد بولتے ہیں کھینچنے کو، لمبا کرنے کو، کھینچنا کوئی چیز۔ بچے استاد بولتے دیکھو بچوں کو کھینچ کے پڑھو، لمبا کر کے پڑھو، مت کر کے پڑھو، مت کرو، لمبا کرو۔ آپ دیکھیں گے قرآن میں ہم نے کل دیکھا تھا دو، ایک بڑا مد ہوتا ہے، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے، ذرا باریک رہتا، چھپا ہوا رہتا۔ ایک بلیک تھک رہتا، سائز بڑا رہتا، ایک پتلا باریک رہتا، چھوٹا مد رہتا۔ وہ ہم لوگ اس کو بڑا مد چھوٹا مد بولتے ہیں عام زبان میں، لیکن اب ہم اس کا نام سے اس کو بولیں گے۔ تو مد کی دو مین کیٹیگریز ہے، مد کی دو مین کیٹیگریز ہے۔ پہلا تو ایک تو وہی ہے جو ہم اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، مد اصلی۔ مد اصلی کی تینوں شکلیں آپ کو معلوم ہے، خالی الف سے پہلے زبر رہنا، اور یا ساکن سے پہلے زیر رہنا، ہے نا، یا ساکن رہنا اور اس سے پہلے زیر رہنا، اور واو ساکن رہنا اور اس سے پہلے پیش رہنا، واو ساکن رہنا اور اس سے پہلے پیش ہونا، یعنی خالی الف سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زیر، واو ساکن سے پہلے۔ یہ تین شکلیں ہیں مد اصلی کی، ہے نا۔ اس کے ہے نا، اب ایک ہے مد اصلی اور ایک ہے مد فرعی۔ ایک ہے مد فرعی۔ یہ مد فرعی میں وہ تمام بڑے مد ہے جو اب ہم پڑھ رہے جا رہے ہیں۔ مد اصلی تو ہم پڑھ چکے تھے، مد فرعی جی کے سے دو سے زیادہ والے تمام مد فرعی میں آتے، جو دو حرکت والا رہتا ہے انہیں مد اصلی رہتا ہے۔ یہ ہم اتنے دن سے پڑھ رہے تھے۔ اب مد فرعی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، یعنی دو سے زیادہ حرکت والے مد، لمبے مد۔ اور کون سے؟ 3 4 5 6، ہے نا۔ یہ اب آپ کی یہ تلاوت کے اوپر ہے، آپ کیسا تلاوت کر رہے ہیں، آپ کس فیز میں تلاوت کر رہے ہیں۔ بعض قاریہ رہتے ہیں بہت، جیسے قرات کے مقابلوں میں یا قرات کرتے وقت میں، یا آپ مصری قاریوں کو دیکھے ہوں گے، ایجپشین یا عربی، بہت لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو ان کے مداں بھی اسی لحاظ سے رہتے۔ جو جتنا لمبا کھینچ کے پڑھا اس کا مد بھی اتنا لمبا رہتا۔ اگر آپ ایک میڈیم رینج میں پڑھے تو مد بھی اتنا میڈیم رہتا۔ آپ رفتار میں پڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو آپ کا مد بھی معلوم نہیں ہوتا، اس میں مد بھی اسی حساب سے رہتا۔ تراویح میں جو پڑھتے، تراویح میں جو قرآن ختم ہوتا
اور روزانہ 5 پارے، روزانہ 3 پارے، روزانہ 10 پارے، ایک شبینہ بھی رہتا پوری رات میں ختم. تو ان لوگوں کا مدہ تیز پڑھنا پڑتا، ان کو مت کرتے بیٹھے رہے تو نہیں ہوتا پھر قرآن ختم. تو وہ اسپیڈ کے حساب سے ان کے حرکات وہ ہوتے، یعنی وہ اس کی مناسبت سے رہتے وہ. تو اب میں آپ کو بتاؤں گا، ہر بڑے مت کے 2 پارٹس رہتے، 2 کمپوننٹ ہیں ہر بڑے مت میں. وہ آپ کو ٹیکنیکلی آپ ایز اے تجوید اسٹوڈنٹ آپ کو معلوم رہنا. وہ 2 کمپوننٹ کیا ہے؟ ایک ہے شرط مد کنڈیشن، شرط مد بولے تو مد بننے کی کنڈیشن، اور ایک ہے سبب مد. سبب مد بننے کا ریزن، سبب مد ریزن. ایک ہے کنڈیشن، ایک ہے ریزن، ایک ہے شرط، ایک ہے سبب. شرط کیا ہے؟ شرط ہے مد اصلی. شرط کمپلسری ہے مد اصلی، شرط کمپلسری کیا ہے؟ مد اصلی رہنا. دو حرکت رہا تو ہی انہیں آگے بڑھ کے 3 4 5 6 بنتا. اسی لیے کل میں جتنے بتایا آپ دیکھیں گے وہاں مد اصلی ضروری رہتا. مد اگر نہیں رہا کسی صورت میں، وہاں پہ لکھنے کی سہولت کی خاطر، شارٹ ہینڈ مارنے کے لیے، ایک کلمے میں سب لانے کے لیے، میں آپ کو وہ بھی کیفیتیں بتایا اور بتاؤں گا. اگر یہ اس کے کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے، یہ کھڑی زیر بھی ہو سکتی، اور یہ الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی 2 حرکت ہے، یہ بھی 2 حرکت ہے، یہ بھی 2 حرکت ہے. تو کبھی کبھی وہ لوگ کیا کرتے، کھڑا زبر کھڑی زیر لکھنے کی سہولت کی خاطر، کلمے کی مناسبت اور موضوعیت کے خاطر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی یوز کرتے. وہ بھی شرط مد ہو سکتا. یعنی مد اصلی بھی 2 حرکت ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. تو کبھی کبھی انہیں شرط موت کے طور پہ یہ ایسا بھی استعمال کر سکتا. یہ بھی میں کل بتایا. تو شرط مد کیا ہے؟ مد اصلی ہے 2 حرکت یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. آپ اپنے ذہن میں یاد رکھیں. سبب مد 2 ہے. سبب مد کتنے ہیں؟ 2 ہے. کون سے ہیں؟ ایک ہے حمزہ اور ایک ہے جزم. ابھی ہم حمزہ والی مد پڑھ رہے ہیں، ابھی جزم والے مد ہم پڑھیں گے بعد میں. ابھی ہم حمزہ سے بننے والے مد بن رہے ہیں. سبب مد حمزہ سے بننے والے 2 مد ہیں. سبب مد حمزہ سے بننے والے 2 مد ہیں. کون سے ہیں 2 مد؟ ایک ہے مد متصل، یعنی ایک ہی کلمے والا مد متصل، اور ایک ہے مد منفصل. منفصل ہے نا، ایک ہے مد منفصل حمزہ سے بننے والے. اب مد متصل اور مد منفصل میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی حمزہ سے ہی بنتے، دونوں کی مقدار بھی 4 4 حرکت ہے. یہ مد متصل ایک ہی کلمے میں رہتا، شرط بھی سبب بھی دونوں ایک ہی کلمے میں رہتے. مد منفصل میں کیا رہتا؟ شرط ایک کلمے میں رہتی، سبب دوسرے کلمے میں رہتا، مگر دونوں ساتھ ساتھ ہی رہتے، دونوں کے بیچ میں اور کچھ نہیں رہتا. کل میں بتایا جیسے ایک ہی کلمے میں کیا ہے، یہ جا ہے نا. مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا ایک ہی کلمے میں تو یہ مد بن جاتا ہے ایک ہی کلمے میں. یہ 4 حرکت سے پڑھیں گے اس کو. مد اصلی کے بعد حمزہ آ گیا 4 حرکت سے پڑھیں گے اس کو پورے قرآن میں، ہے نا. اور یہ ایک ہی کلمے میں ہے. اور 2 کلموں میں کیا ہے؟ کل جیسا میں کل بتایا، بیما انزلہ، بیما، یہ بیما ایک کلمہ ہے. اس ماں جو ہے مد اصلی ہے، جو شرط ہے کمپلسری 2 حرکت. ماں جو ہے مد اصلی کے فوراً بعد حمزہ الف کی شکل میں آ گیا. بیما انزلہ، بیما انزلہ. آپ دیکھیں گے مد اصلی اور شرط مد اور سبب مد ایک ساتھ ہے. شرط مد کیا ہے؟ یا مد اصلی ہے، اور سبب مد حمزہ الف کی شکل میں ہے. یہ ایک خاص بات یہاں پہ یاد رکھنا، الف کی شکل میں. جب اور مد کا سائز چھوٹا ہے. جب بھی 2 کلموں کے درمیان رہتا یہ مد، تو مد کی علامت پتلی رہتی، اور حمزہ ہمیشہ الف کی شکل میں آتا ہے. وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ 2 کلموں کے درمیان ہے، لیکن ہے دونوں ساتھ ساتھ ہی ہے، دونوں ساتھ ساتھ ہی ہے، اسی لیے مد ہوا. بس یہی فرق ہے. اس کو مد متصل بولتے، اس کو مد منفصل. یہ دونوں کی پہچان کیا ہے کل میں آپ کو بتایا، اور میں آپ سے یہ آپ سے بولا تھا ہم وقت میں آپ کیا کرو، سورہ بقرہ کی 50 60 70 آیت تک جتنے مد آئے آپ انگلی رکھ کے خالی مدوں کو دیکھو،
जहां भी मत डाला वहां देखो वहां शरत किधर है, सबब किधर है, शरत किधर है, सबब किधर है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम हो जाए कि मत कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है ना। तो आपको अच्छी नॉलेज होती है। आपको ये अगर ये मद्दे मुत्तसिल को पहचानना है, आपको मद्दे मुत्तसिल को पहचानना है, तो इसकी तीन निशानियां हैं। एक तो इसके मत का साइज जो है बड़ा रहता, और ये जो है एक कलमे में रहता, और जो है तीसरा ये हमजा ओरिजिनल शक्ल में रहता। और ये इसके तीन निशानियां क्या है, इसके तीन निशानियां ये है, मत का साइज पतला रहता, ये दो कलमों में रहता, दो कलमों में रहता, और हमजा हमेशा अलिफ की शक्ल में रहता। हाँ, अलिफ पे जबर जेर पेश, है ना, हमजा अलिफ की शक्ल में रहता। बहुत सिंपल है ये अब हमको मालूम हो गया अच्छी तरीके से। हम क्या करें, हमजा से बनने वाले ये दो ही मद है। हम जुमला 8 मद पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहले फेज में, यानी पहले उस दौर में हम 4 मद पढ़ेंगे, दूसरे दौर में फेज में और 4 मद पढ़ेंगे। तो पहले फेज के 4 में से ये 2 मद ये हो गए। अब बाकी के 2 मद अब ये जज़म से बनने वाले हैं, ये जज़म से बनने वाले ये 2 मद। ये मैं बताऊंगा आपको। ये पहले हम इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे, मुत्तसिल और मुनफसिल की, है ना। हमको अच्छा मालूम हो गया कि मद्दे मुत्तसिल किसको बोलते हैं, मद्दे मुनफसिल। दोनों की ऑफिशियल मकदार 4 हरकत है, 4 हरकत। ये आप माइक कौन खोल लिया, माइक बंद करिए। मैं सबके माइक बंद कर रहा था, क्यों खोल लिया आप लोग? आप मोहम्मद अयूब हाजी साहब, प्लीज आप माइक खोलेंगे ना यार। जब तक मैं आपको पढ़ो नहीं बोल के बोला, आप माइक के खोल, जब पढ़ खोल रहा। नफासत करीम साहब, है ना, तो आपके घरों की आवाज ये वो सब सुने आते थे क्लास वालों को। आप बंद करके रखना, जब आपको पढ़ने का आपका वक्त है, आपको नाम पुकारे तो खोलना। जब तो क्या है, अब आपको ये मालूम हो गया, इसकी दोनों की ऑफिशियल मकदार 4 4 हरकत है। ये भी 4 हरकत खींच के पढ़ना। तमाम किताबों में लिखा हुआ है 4 हरकत खींच के पढ़ना वाजिब है, वाजिब है, जरूरी है, पक्का है। तो इसीलिए क्या करता, बाज 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 इसलिए इसका नाम क्या है, मद्दे वाजिब। इसको मद्दे वाजिब भी बुलाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मद्दे वाजिब। 4 हरकत कंपलसरी है। और इसका मतलब इसका क्या है, आप इसको इसको एक हरकत कम भी कर सकते हैं, दोनों में फर्क बताने के लिए। अगर आप इसको 4 कर रहे हैं तो इसको 3 कर रहे हैं। ये क्या, इसका नाम क्या है, मद्दे जायज। इसका दूसरा नाम क्या है, मद्दे जायज। करना ही करना, ये भी मद्दे वाजिब, मद्दे जायज। खैर अभी आप नामों में मत जाइए, नामों की इतनी जरूरत नहीं है हमारे। मैं बता दे रहा हूँ, बस किताबों में मद्दे वाजिब लिखा होता है, बोले मुल साहब पढ़ाई नहीं हमारे को ये। नहीं नहीं नहीं, मद्दे मुत्तसिल को बोलते मद्दे वाजिब, मद्दे मुनफसिल को बोलते मद्दे जायज। बस बस किताबों में लिखा है मद्दे वाजिब मुत्तसिल मिला के लिख दिया हमने, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो नामा है खाली वो। तो अब हम क्या करें, हम हमजा से बनने वाले 2 मद पढ़े, है ना। एक एक कलमे वाला है, एक 2 कलमे वाला। एक कलमे वाले पे मोटा मत डाला हुआ है, और 2 कलमों के दरमियान में जो है उस पर जरा पतला डाला। आप पूरा कुरान कल जाके आप 50 60 70 आयत तक देखे होंगे, आपको यही कैफियत मिलेगी, यही कैफियत मिलेगी, है ना। और आप इसको जांचने के लिए हर जब भी मत डाला, एक बार बीइंग ए तजवीद स्टूडेंट, आप उसकी तहकीक करना, उसको देखना, इसमें शरत किधर है, सबब किधर है, फाइंड आउट करना। नहीं है तो क्यों नहीं डाला। कभी प्रिंटिंग एरर है, मत का उन्हें निशान डालना भूल गया, तो आप करना मत, आप देख लिए शरत भी है, सबब भी है, आप मत करना होगा। निशान के अब निशान के लकीर के फकीर बोलते ना, आप नहीं है निशान, उन्हें मत का मत नहीं भी डाला तो आप मत करना, क्योंकि वहां पे शरत और सबब है। हाँ, आप वो तजवीज वाला स्टूडेंट ही कर सकता हो, है ना। बात लिखण में अगर मत नहीं डाला उन्हें तो आप मत कर सकते, आपको मालूम है शरत भी है, सबब भी है, 4 हरकत का है, 4 हरकत करना। तो मैं अब क्या है, मैं आपको जो है इसकी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। आज का जो हमारा सबक है, हम वो सबक में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसकी प्रैक्टिस क्या है भाई, ये किताब निकालना पड़ेगा मेरे को। ये किताब है, किताब आगे चलेगी, चलो ठीक है, आ गई है तो आ गई है। हाँ, वेरी गुड।
ये मैं आपको पेज बता रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पूरा। इन्हें पूरा इन्हें क्या कर दिया, मद्दे मुत्तसिल मद्दे वाजिब लिखने के बजाय मिला के लिख दिया मद्दे मुत्तसिल वाजिब। कौन सा मद है? मद्दे फरई की शाख में है, ये बड़े मदों की शाख में, इसलिए मद्दे फरई भी लिख दिया है ना। अब ये पूरा आप पढ़ना, मैं आपको भेजूंगा। मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी आपके ग्रुप में डाल दी है किताब की, आप कभी भी खोल के पढ़ सकते हैं, उसको प्रिंट करके रख सकते हैं, आप जैसा चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग हैदराबाद में हैं उनको हार्ड कॉपी भी दे सकता हूँ। ये देखिए, ये मद्दे मुत्तसिल की मिसालें या मद्दे वाजिब की मिसालें। उन्हें क्या करा, 2-3 लाइना दिया प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को। पहली लाइन में कौन सा मद्दे इस्तेमाल करा? खाली अलिफ से पहले जबर वाला मद्दे असली। पूरे कौन सी मद्दे असली है? जबर वाले हर्फ के बाद अलिफ का मद्दे असली है। लेकिन सबब मद सुब में ओरिजिनल हमजा है। नीचे जो है या साकिन से पहले जेर वाली दूसरी लाइन है, वाउ साकिन से पहले पेश वाली, यानी तीनों मद्दे असली की तीनों शक्लों में आपको मद करके बताया हुआ है। मद्दे वाजिब, मद्दे मुत्तसिल करके बताया। मैं पढ़ रहा हूँ आपको एक बार, अब आप लोगों को पढ़ना है ना। इसके बाद ये पूरा उसका क्या क्या है, नीचे उसके सवाल जो आवत है वो मद्दे मुनफसिल है। उसके बाद मैं ये आप लोगों को पढ़ना है। कैसा है ये प्रैक्टिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा दुआअन निदाअन। जब भी मद्दे असली के बाद हमजा आएगा आप मत करेंगे 4 रकत पूरी कुरान में। और आप उसको टटोल के देखेंगे, इसमें शरत किधर है, सबब किधर है, मद्दे असली कहाँ है, हमजा कहाँ है ना। अब जैसे हवा आप है, उन्हें मत डालना भूल गया था, प्रिंटिंग एरर हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं वहां पे शरत भी है, सबब भी है, आप डाल देना मत। आप 4 रकत से पढ़ना है इसको। क्यों? हमजा आ गया बाद में। हवा मा इन शाअन जाऊ अबना, 4 हरकत से पूरे। क्यों? मध्य असली के बाद हमजा है। दूसरी लाइन या साकिन वाक्य भी मिसालें दिया। आप बोले आप सब अलिफ में ही 4 हैं, या में वाव में कहीं को नहीं है। उन्हें या के भी दिया, वाव के भी दिया। सी अत बरी वजीआ। अब ये जीम के नीचे जेर है, उसको अलिफ लगाया उन्हें, और बाद में या साकिन है। या साकिन का जज्म किसको पकड़ा? जीम के जेर को, वो अलिफ फसली है। आप ये अलिफ है बोल के जा बोल के नहीं कर देना, जबर नहीं है वहां पे, जेर है ना। है कुरान में, ये कुरान से लिया है उन्हें पूरी मिसालें। वजीआ, अलिफ गिर गया, अलिफ फसली है ना। वो लिखने का है बस तरीका ऐसा, मानों में उसका दखल है। वजीआ, समझ गया ना। खतीअतुहु, क्या है यहाँ पे, क्या है मध्य असली? या साकिन से पहले तो पे जेर है, उसके बाद हमजा आ गया। खतीअतुहु, मद नहीं डाला था उन्हें, मैं डाल दिया यहाँ पे, आप देख लिए। खती कैसा पड़ेगी? 4 हरकत से खती। और खींचना काम पे है, मध्य असली 2 हरकत का 4 हरकत कर देना मध्य असली को ही। वजी खती, ऊपर भी देखिए, जा जो 2 हरकत का मध्य असली था उन्हें 4 हरकत का हो गया। हाँ, वही जहाँ मद है वहीं उसी को 2 हरकत को 4 हरकत करना मध्य असली को। खतीअतुहु खतीआतिहिम, खतीआतिहिम, है ना। पहले मद्दे मुत्तसिल है, बाद में खतीआतिहिम, हमजा पे खड़ा जबर है, हमजा पे खड़ा जबर है। पहले 4 हरकत करके फिर खड़े जबर के 2 हरकत करना है। खतीआतिहिम, समझ गया ना। आखिरी लाइन जो वाउ साकिन से पहले पेश वाली, सू सूअन खुरूइन उलाइका। कैसा करा उन्हें उलाइका में? एक कलमा लिखने के लिए हाथ में उठाना, जल्दी तेज लिखने के लिए उन्हें क्या करा, शॉर्ट फॉर्म बना के खड़े जबर से, खड़े जबर भी शरत बना दिया। मैं कल बताया था आपको, आप देखेंगे, कल मैं ये बताया था, मैं आपको फिर दोबारा भी बता देता हूँ। ये असल में उलाई का क्या है,
ये उलाई का है, ये उलाई का, ये ओरिजिनल लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5 बार हाथ उठाना, बहुत लंबा हो जाता और टाइम लगता। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया उन्हें, ये वो तो खैर लिखना ही लिखना है, अलिफ वाव लिखा ही लिखा उन्हें, लाइका को क्या कर दिया उन्हें, ये सब मिला के लिख दिया। और मध्य असली को क्या कर दिया, ये मध्य असली को, सॉरी यार इसको, ये मध्य असली को क्या करा उन्हें, ये मध्य असली को खड़े जबर से बना दिया, यहाँ पे खड़ा जबर कर दिया इसके बजाय, ये पूरा लाम अलिफ लिखने के बजाय लाम पे खड़ा जबर डाल के 2 हरकत बराबर कर दिया, और ये हमजा को नीचे लिख के अलिफ जेर लगा दिया, काप का जबर लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया पूरा, है ना। उला, और यह मत डाल दिया, क्यों, 2 हरकत के बाद हमजा है, शरत के बाद सबब है ना, मध्य असली के बजाय खड़े जबर से बना दिया। उलाई, एक कुरान में बेहिसाब बाद इस्तेमाल होता है वर्ड, उलाई का बोलते, उलाई का वो लोग, वो कौम, वो जत्था, वो कबीला, है ना, वो ग्रुप, वो है ना, वो कौम, आप इसको भी बोले, वो बस्ती के रहने वाले, उलाई का, है ना, वो लोग, वो काफिर, वो मोमिन, उलाई का उन्हें जिसके साथ इस्तेमाल करा वो हो जाता, ठीक है ना। उलाई का 4 हरकत करना है, 2 हरकत खड़े जबर को ही 4 कर देने का है, उलाई का। तो लिखने की खातिर उन्हें मध्य असली को खड़े जबर से इंडिकेट कर दिया, ये मैं आपको कल बताया भी था और आज भी बताया। ये क्या है, उलाई का, इसराइला, इसराइला, फिर बाद में और एक मध्य असली आ रहा है, हमजा पे जेर फिर या साकिन है, फिर 2 हरकत करना है, इसरा 4 हरकत, ईला 2 हरकत, यहाँ पे इसरा घड़ी घड़ी आता पूरा, कौम का नाम है इसराइल, इसराइल बनी इसराइल, बनी इसराइल, 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 कैसा पढ़ेंगे, इसराइला, सही पढ़ना, 4 के बाद 2 हरकत करना हर बार, हाँ। लिल मलाइकती, लिल मलाइकती, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, मला में लाम अलिफ था, पहले मध्य असली था, उन्हें क्या कर दिया, पूरा एक ही कलमे में लिख देना बोल के सब जोड़ दिया, लिल भी जोड़ दिया, मलाइकती भी जोड़ दिया, सबको एक ही जगह कर दिया, सब अलग अलग थे, लिल अलग था, मलाइकती सब लाम पे मध्य असली था, उन्हें खड़े जबर से बना दिया, पूरा एक ही एक वन गो में लिख दिया, हाथ उठाए बगैर, फास्ट लिख सकते इसको, तो ये फास्ट लिखते 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 ये मुरव्विज हो गया, ये यही यही चलने लगा, हमेशा ऐसे ही लिखने लगे। लिल मलाइकती, कहाँ है मध्य असली, खड़ा जबर है मध्य असली, सॉरी शर्त मत कहाँ है, खड़ा जबर है, सबब कहाँ है, हमजा है, हमजा के नीचे जेर है, मला, अब वो लाम का खड़ा जबर 4 हरकत बन गया, लिल मलाइकती, है ना। क्या बोल रहा है, इन सब कलमात में मध्य असली के बाद सबब मद हमजा एक ही कलमे में आया है, इसीलिए मध्य मुत्तसिल हो गया, मध्य वाजिब हो गया, 2 हरकतों से ज्यादा यानी 4 5 हरकतों तक तवील करना चाहिए। क्यों बोल रहा 5, अगर आप मुनफसिल कुछ 4 कर रहे हैं तो इसको एक बढ़ा लो, 5 कर लो, डिफरेंस मालूम होने के लिए, अगर नहीं 4 ही रखे तो उसको 3 कर दो, नहीं तो दोनों को 4 पढ़ो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोनों को 4 पढ़ो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो अच्छा बहुत यानी आगे जाके जरा परफेक्ट तरीके से पढ़ने के लिए एडवांस में लिख दिया हमने, ठीक है, तमाम चीज़ें है। इसके बाद मध्य वाजिब, मध्य मुत्तसिल कब होता है, जब शर्त मद और सबब मद एक जगह जमा होते हैं तो मध्य मुत्तसिल होता है। मध्य मुत्तसिल को कितनी हरकतों तक मद करना चाहिए, 4 हरकतों तक करना चाहिए, ठीक है। मध्य मुत्तसिल मध्य असली है या मध्य फरई, मध्य फरई है, ज्यादा बड़े मदम बनने वाला है ये, समझ में आ गया सब कुछ, हर चीज समझ आ गई माशाल्लाह। कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है तो मेरे से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजी, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे बन गए वजी। जी हाँ माशाल्लाह, आप अभी शुरू से नहीं आए वैसा लग रहा, बीच में से आया, नहीं नहीं, शुरू से ही था सर। शुरू से, अल्लाह, ठीक है बता दो। ये देखिए उन्हें क्या करा, जीम के नीचे जेर है और ये या साकिन है, ये या साकिन है, ये जज्म किसको पकड़ा, बोलिए आप, या को
ये या पे जो जज़म है उन्हें किसको पकड़ा जाके, उसको हरकत चाहिए उन्हें जाके, नहीं आपको नहीं, आप शुरू से है खाली है लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे। ये जज़म जाके ये जेर को पकड़ा, उसको हरकत चाहिए जज़म को, जी जी और उन्हें क्या करा, इसको पकड़ के ये अलिफ को वसली कर दिया, नहीं पढ़े जा रहा अभी। अब ये मध्य असली हो गया, जी, समझ गया, जी, जी ये सबब बन गया। अब उसके बाद हमजा है तो उन्हें मत, ये अलिफ गिर गया ना, जज़म गिरा जी देता जी ना, जी हाँ हाँ जज़म, अभी बात समझ। क्योंकि अलिफ पे कोई हरकत नहीं थी तो उन्हें जीम करने गया, अलिफ खाली था तो उन्हें क्या करा, जज़म क्या करा, आगे जाके देखा हरकत कहाँ है, अरे हरकत जीम के नीचे है, जाके उसको पकड़ लिया जी। अब जैसे ही उन्हें या साकिन जेर को पकड़ेगा तो मध्य असली हो जाएगा, है ना। मध्य जी असली जी के बाद फिर क्योंकि हमजा आ गया था, हमजा आ गया था तो मद बन गया, वजी आ, हमजा आ गया था मध्य असली के बाद, वजी आ, अलिफ नहीं पढ़ना, अलिफ पढ़ने गए तो फिर वो नाजिर वाले हो जाते आप, फिर वो जिंदगी भर उसको वजह ही पढ़ेंगे आप जा कैसा पढ़ेंगे उसको, जेर है, वो अलिफ नहीं पढ़ा जा सकता, वहाँ जबर है ही नहीं, समझ गए ना। तो और किसी को कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर सूरह बकरा में देख रहे थे आयत नंबर 17। हाँ, पहले मैं पूरे, आप कल जो जो लोग पढ़े, मैं और जहाँ जहाँ कौन से आयत में आपको डाउट आया मैं पूरे सबके बताऊंगा। यहाँ ये पहले ये एक्सरसाइज के अंदर ये जो स्क्रीन पे जो मद नजर आ रहे हैं, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लेना, मैं अभी जाके उनको सूरह बकरा बता देता हूँ। कौन सी आयत बोले जनाब आप? 17 कल में मैं सर, ही बता दिया था, वो तो मैं ही फलम्मा में बता सर दिया था। उसमें छोटा सा मद है और आजाद में मोटा मद है। ये देखिए, फलम्मा में क्या है, अल्लाह अकबर, आप बेसिक नॉलेज, फलम्मा एक कलमा है, अदात दूसरा कलमा जी है ना, दूसरा कलमा है, और पहले कलमे में मद्दे असली है, दूसरे कलमे के शुरू में हमजा है, जी मद्दे मुनफसिल है, छोटा मद डाला। अजाअत पूरा एक ही कलमा है, पूरा वजाअत एक वर्ड है जी वो उसके अंदर मद्दे असली के बाद हमजा ओरिजिनल शक्ल में है, वो मद्दे मुत्तसिल है बाद में, पहले मुनफसिल है बाद में मुत्तसिल है। जी बहुत आसान है ना ये तो, है यस ना जी जी, बहुत, ये तो सबसे सिंपल है, ये तो बहुत। और जो है, कल जितने लोग 1 से लेके 70 आयत तक, 50 आयत तक करे हैं, उसमें कोई भी आयत पे उनको कुछ डाउट मिला, कोई चीज समझ में नहीं आई तो मेरे से पूछे, या ऐसा नहीं पूछिए, ये बिल्कुल इन्होंने जो पूछे ये बहुत ही बेसिक चीज ही पूछ रहे हो। किसी कोई काम पहले आप लोग करे, काम ये सब लोग 50 आयत तक देखे पहले, इसमें से कौन कौन देखे? कोई भी नहीं देखे? देखे तो बताइए ना, हम देखे, हम करे होमवर्क बोल के बताइए। मैं देखूं सर। आपको कुछ मिला, डाउट मिला कुछ? यार 50 आदमी में डाउट एक नहीं मिला आदमी सर। मुद्दसिल डाउट और नहीं मिला? मुनफसिल। सलाम सर। आपको कोई डाउट मिला, कोई कहीं कोई शरत नहीं मिली या सबब नहीं मिला या क्या, कोई आपको समझ में नहीं आया कहीं पे मद, कोई ऐसा है तो आप मेरे से डिस्कस करिए, मैं समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। अ, आयत नंबर 34 में 34। जी, लिल मलाइकती। ये क्या है? ये अभी समझाया ना, इतनी देर से वही था ना, लिल मलाई गति, खड़े जबर से मत बनाया उन्हें, शरत खड़ा जबर है, उसके बाद हमजा है ना एक ही कलमे में। जी जी हाँ अब भी बताया ना, वो किताब में भी था ना ये मत। हाँ हाँ वही पूछ रहा था। और हाँ क्या, कुछ नहीं था जब मालूम हो गया था। खैर नहीं, मैं बहुत अच्छा गया, आप यकीन नहीं है जो पूरे 50 सदी में पढ़ के आए घर में, बाकी वाले भी करके आना, समझ के आना पूरा, ये होमवर्क करके समझ के आना। एनीवे ठीक है, किसी को कोई डाउट है? ये आप लोग सब 50 पूरे 50 आयतों तक देख के एक एक मत को झटक के पटक के उसकी पूरी शरत सबब अच्छा गौर से देख के, मत क्यों डाला, कैसा डाला, पूरा देख के आए तो अच्छा रहा।
थोड़ा ये काम हर थोड़ा डाउट का थोड़ा काम घर में करके आना। चले, ओके। एक सर, एक जी डाउट होता, जी 21 बोलिए। नंबर आयत में सोच सोच के बोल रहे हैं क्या? एक साथ बोलिए ना। कौन सी ये आयत? देख कर बोल रहे हैं। अब देख के अब ढूंढ रहे हैं, क्लास में आके ढूंढ रहे हैं जो। कौन सी नहीं आयत नंबर हम आयत नंबर बोली। 21। अच्छा, पहले 21 का है, बाद में 34। 21 को छोड़ के पहले 34 में चले गए थे आप। हाँ, माशाल्लाह। पेज पलटा के हाँ, क्या है 21 में? या अय्युहन नास, या हाँ, अय्युहन नास, ये कैसा बना है? 21 में। हाँ, ये आपका सही था, है बिल्कुल, ये सभी डाउट लेके आप। मैं अब आपको बताऊंगा, सब लोग देख लीजिए। ये तमाम क्लास वाली ये या यूहन्ना नास, ये मैं रेड कर रहा हूँ। उन्हें क्या करा मैं बताता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ या यूहन्ना नास कैसा है, मैं आपको वहां लिख के भी बताता हूँ। बहुत सही निकाल के लाया। ऐसा है वो मालूम। या यूहन्ना नासु ऐसा लिखा उन्हें। ऐसा लिख के उन्हें क्या करा, ये सॉरी, उन्हें उन्हें क्या करा मैं बताता हूँ आपको। ऐसा है वो, या यूहन्ना नासु, या मत डाल दिया उन्हें। ये असल में क्या है, और से देखिए। अब ये बहुत आता है, ये पूरे कुरान में थोड़ी थोड़ी देर पे आता है। अय्युहन्नास अय्युहन्नास अय्युहन्नास, ऐ लोगो ऐ लोगो ऐ लोगो। अय्युहन्नास किसको बोलते हैं? ऐ लोगो ऐ लोगो। हाँ, या अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो। या अय्युहन्नास बोले तो सबको खिताब कर रहे हैं, पूरे आम लोगों को, पूरी जनता को, पूरे कौम को। या अय्युहल मोमिनून बोले तो सिर्फ मोमिनों से खिताब होता है। या अय्युहल काफिरून बोले तो काफिरों से खिताब होता है। तो इन्हीं ये या अय्युहन्नास है, पूरा जनरल खिताब है लोगों से। अब इसमें क्या है? अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी, वालेकुम ये सलाम। ये जबर जो है ये दूसरे अलिफ पे लगेगा, पहले पे लगेगा? नहीं, वहां पे कुरान में जैसा है वैसा वैसा लिखा हूं। अच्छा आप अच्छा। यहाँ जी बताता हूँ, जी फिर जी बताता जी हूँ। यहाँ जी। पे पहले उस पे लिखा, और दूसरा वसली अलिफ में लिखा, उसमें है ही नहीं वसली अलिफ। चलो वो भी गिरा दे दो। ये वसली अलिफ वो है ही नहीं, चलो ठीक है। ऐसा है वो कुरान में, ऐसा है कुरान में, ऐसा है। असल में क्या है ये या, ये मध्य असली है। अय्युहन, अय्युहन नासु, ये एक्चुअली ऐसा है। ऐसा एक्चुअली ऐसा है। उन्हें क्या करा, ये दो दो तीन तीन बार हाथ उठाना कई को बोल के क्या करा। ये जो मध्य असली था, ये अलिफ, सॉरी यार, ये जो मध्य असली था, इसको खड़ा जबर से इंडिकेट कर दिया उन्हें। यहाँ पे खड़े जबर से इंडिकेट कर दिया इसको। और ये हमजा को इसी में मिला के लिख दिया। समझ गए आप? ये हमजा को, अरे देखिए मैं आपको सही क्या जी बात, जी जी, ये देखिए। माशाल्लाह। हाँ, इस पे क्या करा उन्हें, ये मध्य असली कर दिया, हमजा को इसी में लगा दिया। हमजा को इसी में लगा दिया। सही, एक बिल्कुल बिल्कुल वन गो में काम कर दिया उन्हें। मन को में काम करके मत मत डाल दिया, अली खड़े जबर पे मत डाल दिया। या सही। अय्युहन्नासु, ये सबब मत हमजा है। ये वाला जो है, ये वाला सबब मत हमजा है। जी ये जी ये जी। ये शर्त मत है, एक सबब मत है, दोनों को मिला के लिख दिया उन्हें। सही सही, क्योंकि माशाल्लाह, इतना जज़ाकल्लाह। इस्तेमाल हुआ, इतना इस्तेमाल जज़ाकल्लाह। हुआ कुरान में। तो उन्हें क्या करा, ये इसको मध्य, सर मध्य मुनफसिल है फिर। मध्य मुनफसिल है ये, क्योंकि मत का साइज छोटा है ना। या ही होना। और हमजा हम सबब मत हमजा अलिफ की शक्ल में है ना। मत का साइज छोटा है ना। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा आप निकाल के लाए, मैं बताने वाला था। ये बिल्कुल सही। और अब देखिए, और अब ये और अब ये अब ये आप देखेंगे कुरान में, ये देखेंगे आपको समझ में आएगा ये कौन सा मद है। आप समझ आने, सबब मद हमजा अलिफ की शक्ल में, अलिफ पे जबर है, और शर्त मद खड़ा जबर है। हाँ, और सब अलिफ कुछ लाम मीम जी, और सब स्टार्ट, कुछ पहली आयत में अलिफ लाम मीम। वो मैं समझाऊंगा। वो अभी नहीं पढ़े ना जो बहुत से, तो अभी तो हम दो ही मत पढ़े।
وہ ابھی آگے آ رہے ہیں، جزم والے ہیں وہ. اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم حمزہ والے مت پڑھ رہے خالی. شکریہ جزاک اللہ. پوری کلاس میں یہ جو میں ابھی سمجھایا، یہ پوری کلاس والوں کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ یا ایھا النبی، نبی سے خطاب ہے، اے نبی. یا ایھا یعنی بہت آتے یا ایھا الناس، یا آدم، اے آدم. تو یہ یا کئی واسطے بلاتے ہیں آپ کسی کو مخاطب کرنے کا، اے انسانوں. یا عربی میں اس کو ہے اے انسانوں، اے غلاموں، اے مومنوں، اے کافروں، اے متوجہ کرنے کے لیے، یہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے یہ ورڈ. وہ یا سے عربی میں اس کو بولتے یا. تو نا یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے نا. تو یہ یا ہمیشہ یہ مد منفصل رہتا. اور کوئی آیت میں آپ کو ایک ہی آدمی کر کے آیا یار، پوری کلاس میں بولا تھا 50 آیت تک 60 آیت تک چیک کرو. آپ لوگ انٹرسٹ نہیں لے رہے یار. آپ قرآن میں انٹرسٹ نہیں لیے تو کس میں انٹرسٹ لیں گے؟ یہ تو بچپن میں سیکھنے کا کام تھا. یہ ہم آلریڈی لیٹ ہے، اور بھی آپ پھر اور آگے بھی سیکھنے والے ہیں کیا یہ؟ اب کون سے اسٹیج میں جا کے سیکھیں گے؟ ہاں کون سے اسٹیج میں جا کے سیکھیں گے؟ آپ اتنا ایزی لیے تو کیسا ہوگا؟ ہاں آپ لوگ سیریس لینا، گھر میں جاتے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. قرآن لے کے 10-15 منٹ بیٹھے تو خالی آپ کو مدی پک کرنا تھا نا. آپ کو پورے 70 آیت تک پڑھو بولا. میں پڑھو بولا تو پھر تو آپ آتے ہی نہیں تھے کلاس کو. میں کچھ بھی نہیں بولا، خالی مدوں کو پک کر کے اس میں غور کرو بولا. کوئی بھی نہیں کرے. تو 1-2-4 لوگ کرے ہوں گے. اینی وے تو ایسا تو نہیں چلے گا نا. آپ لوگوں کو سیکھنا ہے، میرے کو تھوڑے سیکھنا ہے. دونوں کو، پڑھانے والے کو بھی انٹرسٹ ہونا، پڑھنے والے کو بھی انٹرسٹ ہونا. تو جب کہیں اچھا یعنی کلاس کا مزہ آتا، کلاس اچھی چلتی ہے، اچھا انڈرسٹینڈنگ رہتی. ایک طرف میں خالی وہ کر رہا ہوں اور آپ لوگ جو ہے ڈھیلے، بالکل کسی کو فکر ہی نہیں ہے نا. سب سے آخری پریورٹی ہے ہمارے پاس دین نا. چلے اب ہم کیا کریں گے. یہ ہاں میرا جو سیکوینس تھا وہ یہ تھا. یہ آپ لوگ تھوڑے لوگوں سے پڑھاؤں گا. میں پوری کلاس سے پڑھاتے بیٹھا تو پورا گھنٹہ اسی میں نکل جاتا، کیونکہ آج میں آپ کو منفصل بھی بتا دوں گا. منفصل کی بھی پریکٹس کرانا ہے. یہ صرف متصل کی پریکٹس ہے. منفصل کی بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، ہے نا. یہ متصل کی پریکٹس ہے. یہ پورے ایک ہی کلمے میں شرط بھی ہے، سبب بھی ہے. ایک ہی کلمے میں یہ پورے جو ہے شرط بھی ہے، سبب بھی ہے. 4 حرکت سے پڑھنا. جب بھی یہ مد قرآن میں آئیں گا، آئندہ سے ہم بھاگیں گے نہیں. یعنی فاسٹ زٹ بول کے نہیں گزریں گے. 4 حرکت بولتے 4 حرکت. غنہ آیا تو 2 حرکت بولتے غنہ کریں گے. مد آیا تو مد کریں گے. خلخلہ آیا تو خلخلہ کریں گے. مد اصلی آیا تو 2 حرکت کریں گے. اب جتنے چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ پورا امپلیمنٹ کرنا ہے. اب امپلیمنٹ کرنا ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے. روز زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے، ہے نا. صبح سے لے کے شام تک روزانہ آدھا پارا، ایک پارا پڑھیے. کم سے کم 1 پارا پڑھیے روزانہ، ہے نا. اس سے بہتر عبادت، نماز کے بعد سب سے بہتر عبادت تلاوت کلام پاک ہے. یا نمازیں نہیں ہو رہے ہیں تو نیکسٹ عبادت میں کہاں سے جائیں گے؟ 1 پارا. آپ کیا کرنا، جیسا میرا معمول ہے، جیسا بہت سے لوگوں کا بھی معمول ہے. ہمارے 1 تاریخ مہینہ شروع ہوتی، 1 تاریخ کو قرآن شروع ہو جانا. 1 تاریخ کے دن 1 پارا پڑھ لینا. 1 پارا پڑھنے کے لیے 20 منٹ لگتے. آپ اگر ون گو میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو بورنگ ہوتی، آپ بہت بزی آدمی ہے، آپ وی آئی پی ہے، جو بھی ہے، تو آپ کیا کریے، فجر کے بعد 1 پارا پڑھیے. ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد. اگر دن بھر میں نہیں ہوا تو پھر عشاء میں سنو گے. 2 تاریخ کو 2 پارا، 3 تاریخ کو 3 پارا. جس تاریخ کو جو تاریخ رہی، 15 تاریخ ہے 15واں پارا. 30 تاریخ ہے قرآن ختم. دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر قرآن شروع. سال میں 12 قرآن آتے، پتہ بھی نہیں چلتا. 20 منٹ ڈیلی، 24 گھنٹے میں 20 منٹ ہم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو. ثواب بھی ہونا ہے، جنت میں بھی جانا ہے. جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کے لیے کام کرنا کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی. خالی جانا ہے، بس جنت میں جانا ہے.
कैसा मिलेगा जन्नत? एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए पसीना निकालना पड़ता, रातों रातों पढ़ना पड़ता, जगना पड़ता, याद करना पड़ता, कई किताबें पढ़ना पड़ता। मैं आपको बोला ना, एक मामूली लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के वास्ते 5 किताबें पढ़ना है ना, टेक्स्ट बुक, प्रोस, पोएट्री, नॉन डिटेल, लॉन्ग नॉन डिटेल, शॉर्ट नॉन डिटेल, ग्रामर, एक लैंग्वेज पढ़ने के वास्ते। अल्लाह मियाँ एक ही किताब दी 450 सफ़े की, सब उसी में है। उसको पढ़ो बोले तो मसला है, उसकी रीडिंग मसला है हमारे को। लेके बैठते नींद आना शुरू हो जाती, शैतान नहीं पढ़ने देता आपको, आप सो जाते। चले, तो मैं 5-6 लोगों के नाम पुकारूंगा रैंडमली, तो आप जो है ये लाइनें पढ़ के बताना। बिलाल मजीद साहब, जनाब बिलाल मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहली लाइन पढ़ी जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअ दुआ निदाअन हवा माइन शाअन जज़ाउ अबना सी। अबना में बस 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 बस, आप पूरा आप ही पढ़ लेंगे क्या? ये अबना में शरत मत कहाँ है, सबब मत कहाँ है? अबना अबना सबब मद है और शर्त मद है अबना ना, और फिर हमजा है सबब मद। ना मध्य असली है, शर्त मद है। बिल्कुल मध्य असली बोलना, शर्त मद क्या है? मध्य असली, मध्य असली जनाब, मध्य असली है। वहां पे कहाँ है मध्य असली? खाली अलीफ से पहले नून पे जबर है, बिल्कुल। मध्य असली हो गया। सबब मद क्या है? फिर हमजा, फिर हमजा है आखिरी, हमजा है सबब मद। हाँ जनाब, हमजा है ना? सबब मद बेशक हमजा है। बेशक। वेरी गुड। अशाज अली, अशाज अली। दूसरी लाइन पढ़िए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीअत बरीअ वजाअ। जब से आप नए क्लास में हैं, आप जीम पे जबर है, जीम पे जबर है, जेर है? जी जेर। फिर जा कैसा पढ़े आप? जी वालिफ वसली है, जी मैं दिख नहीं रहा है वो ऐसा। दिख नहीं है, सब दिख रहा है। मैं जब से बताया ना आप लोगों को उसके बारे में। जी पढ़िए वजीअ जी। खती खतीअतिम। अति अतहू, हमजा पे जबर है, ता पे पेश है, हा पे उल्टी पेश है। खती अतहू। जी। आखिरी का पढ़िए, फजलुर रहमान साहब पढ़िए, फजलुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। अरे नीचे की लाइन पढ़िए। आऊज़ु जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सू सूअन कुरूइन उलाइका इसराईला लिल मलाइकति। माशाल्लाह, अच्छा पढ़ा आपने। जी शुक्रिया। आगा अशरफ साहब, पहली लाइन पढ़ा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء دعاء نداء ہواء ماء شاء جزاء ابناء. ہم سپرے صاحب دوسری لائن پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیئت بریئ وجیء خطیئتہ خطیئاتہم. جی صحیح پڑھا. جی ماشاء اللہ. چل ویری گڈ. حاجی صاحب پڑھیے. حاجی صاحب ایوب حاجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلی لائن پڑھے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء دعاء نداء ہواء ماء شاء جزاء ابناء. ماشاء اللہ. ویری گڈ. عبد الحامد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیچ والی لائن پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیئت بریئ وجیء خطیئتہ خطیئاتہم. خطیئاتہم میں شرط مت کہاں ہے؟ شرط مت جناب یا سے پہلے زیر. ماشاء اللہ. حمزہ پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر. خطیئاتہم سے. ماشاء اللہ. حمزہ پہ کھڑا زبر ہے. بہت اچھا پڑھا. آپ کا ہوم ورک بھی دیکھا میں. بہت اچھا آپ نے کیا. آصف اقبال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. آخری لائن پڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوءا قروء اولئک اسرائیل للملائکتی میں شرط مت کہاں ہے؟ للملائکتی میں شرط مت ہے. اتنی دیر سے ہم پڑھ رہے ہیں نا. اتنی دیر سے ہم سمجھا رہے ہیں نا آپ کو. کوئی دوسرے بولیے اس میں شرط مت کیا ہے؟ کھڑا زبر سے بنایا. کھڑا زبر شرط مت. پوری کہانی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی سب الٹ پلٹ سیدھا بول دینا. کھڑا زبر شرط مت کہاں ہے بولے تو کھڑا زبر ختم. وہ نہیں بول سک رہے آپ لوگ. خالی سن رہے ہیں. ایک کان سے سن رہے ہیں, ایک کان سے نکال دے رہے ہیں. ہم لوگ سنی مسلمان ہیں. چلیے اب نیکسٹ بھٹ صاحب پڑھیے. بھٹ صاحب ارشاد صاحب. جناب ارشاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
पहली जनाब कहाँ लाइन से पढ़े, पढ़ूं? पहली लाइन पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जाअ दुआअन निदाअन हवाअ माइन शाअन जज़ाउ अबनाअ। ये जो मिसालें पढ़े कौन से मत की है जी? ये जो मिसालें पढ़े आप कौन से मत की मिसाल है? ये मद मुतसिल। मुत्तसिल है, मध्य मुत्तसिल है। मध्य मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मद मुतसिल एक जिसमें जो एक ही कलमे में एक ही शरत कलमे और में सबब हो, एक ही जो कलमे में एक ही कलमे में शरत और सबब हो उसको बोलते हैं मध्य दोनों मुत्तसिल। एक साथ मुत्तसिल मौजूद मिला है। हुआ, मिला हुआ। जी जी। शर्ते मत क्या है? शर्त मद असली है। वेरी गुड। पूरी क्लास वालों को बोल रहा हूँ मैं सवाल, जब भी कभी पूछेंगे शर्त मत बोलते ही खट से बोल देना मध्य असली। मद असली मध्य असली कहाँ है बोले तो बोलना खाली अलिफ से पहले जबर है अगर रहा तो, नहीं तो या साकिन से पहले जेर है अगर वो रहा तो, या वाव साकिन से पहले पेश है। अगर ये तीनों भी नहीं है तो फिर या तो खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश होगा जिससे उन्हें शरत बनाया, और सबब क्या रहेगा? हमजा ओरिजिनल शक्ल में। मुत्तसिल में हमेशा सबब मत हमजा रहता ओरिजिनल शक्ल में। पूरी क्लास वालों को ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, पूरी क्लास वालों को। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अभी भी, आप मेरे से फिर पूछो मैं पूरा फिर समझाऊंगा, लेकिन खाली मुंडी नहीं लाना, वाकई में समझ में आना, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे मध्य मुत्तसिल की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसको मध्य वाजिब भी बोलते हैं। अब हम मध्य मुनफसिल के लिए मैं क्या करूंगा, आपको डायरेक्ट एक सूरा बताऊंगा। मध्य मुनफसिल यानी दो कलमों के बीच में, दो कलमों के बीच में उसमें हमजा हमेशा अलिफ की शक्ल में रहता है, आपको मालूम है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस का सूरा बताता हूं और समझा देता हूं, ये बहुत इजी है। अब भी हम पढ़ के आ रहे हैं, ये बहुत सबके लिए आसान हो जाएगा। अब हम मध्य मुनफसिल की प्रैक्टिस करेंगे। क्या है यहाँ पे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये सूरा हमारे खाली साहब से पढ़ाता हूँ, देखो उन्होंने तमाम मद जहाँ जहाँ मद है उन्होंने मद कैसा करते हैं, और हमको भी ये सूरा पढ़ते वक्त में एहतियात करना चाहिए। ये देखिए सुनिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। समझ में आया आपको मध्य मुनफसिल? एक ही सूरे में समझ में आ जाना। उन्होंने जो जिस तरीके से पढ़े, कुल या अय्युहल काफिरून, ये अब भी समझाया हम, अय काफिरो कह दो, अय काफिरो। कुल या क्या करा, उन्हें खड़े जबर से शरत बनाया और हमजा जो दूसरे कलमे में था उसको लाके जोड़ दिया। अब भी बताया मैं आपको बोर्ड पे, ये मध्य मुनफसिल है, ये असल में दो कलमों में है और शरत मत खड़ा जबर है। अब भी आप लोगों को समझाया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो किसी को मेरे से पूछो, मैं फिर दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ ये फिर उस्ताद साहब यहाँ ये एक ही कलमे में आता है ना फिर या में? हाँ ये स्पेशल है ये, मगर हमजा दिख रहा है ना आपको, एक ही कलमा है लेकिन सबब मद हमजा एक ही कलमे में, मत का साइज छोटा है, बाकी के दो निशानियों से पकड़ लेना उसको, सही है? जी जी। और किसी को कोई डाउट है तो मैं फिर उसको शुरू से समझाऊंगा। ये मध्य मुनफसिल है। उसके बाद ला आबुदु, ला एक कलमा है, आबुदु दूसरा कलमा है। ला में शर्त मद मध्य असली है, आबुदु में हमजा है पहले
अलीफ पे जबर है, मत डाल दिया उन्हें। ये जो खड़ा जबर या खड़ा जेर उल्टा पेश में सिर्फ खड़ा जबर होता है? हाँ, खाली अलिफ से पहले जबर जो रहता उसके बजाय उन्हें क्या करा, खड़े जबर से बनाया जनाब, है ना। अगर या साकिन से पहले जेर वाला रहा तो उन्हें खड़ी जेर से बनाता जी। वाउ साकिन से पहले पेश वाला मध्य असली रहा तो उन्हें उल्टे पेश से बनाता। सही है जी जनाब, सही, थैंक यू। देखिए ला आबुदु, ला में शरत है, आबुदु में हमजा है, दूसरा आबुदु दूसरा कलमा है, ला एक कलमा है, आबुदु दूसरा कलमा है, मध्य मुनफसिल है। समझ में आ गया, मध्य मुनफसिल है। आयत नंबर 3, वला अंतुम, वला अंतुम, वला एक कलमा है, अंतुम दूसरा कलमा है। पहले कलमे में शर्त मद है, मध्य असली, दूसरे कलमे में हमजा है, अलिफ पे जबर है, दोनों एक साथ जमा हो गए, मध्य मुनफसिल हो गया, मध्य जायज। ठीक है, आगे चलिए। आबिदुन मा, आबुद, मा एक कलमा है, आबुद दूसरा कलमा है। शरत के बाद सबब एक साथ आगे, मत डाल दिया उन्हें। आपको मध्य मुनफसिल करके पढ़ना है इसको 4 रकत से। वला, आगे चलिए आयत नंबर 4, वला अना, फिर वैसे ही है, पहले कलमे में शरत है, दूसरे कलमे में हमजा है ना, मत डाल दिया उन्हें, मत करके पढ़ना है। मौलवी साहब कैसा पढ़े, फिर एक बार पढ़ा के बताऊंगा आखिरी में, ठीक है। फिर आयत नंबर 5, वला अंतुम, यहाँ पे भी शरत है, सबब है। शरत क्या है, ला में मध्य असली है, खाली अलिफ से पहले जबर है, दूसरे कलमे में हमजा है, अलिफ पे जबर है, मत की अलामत डाल दिया उन्हें उस पे। अब मध्य असली 2 रकत नहीं है, अब ये 4 रकत है ये। क्यों? शरत और सबब मिलते ही बड़ा मत बन जाता है ना। किसी को भी डाउट आ रहा मेरे ये स्टेटमेंट में, मेरे से पूछना, तो मैं आपको फिर और भी बता सकता हूँ, है ना। माँ, फिर आगे चल जी। मध्य मुनफसिल में अलिफ ही आएगा कि हमजा भी आएगा? हमजा, उसका सबब मद हमजा है, हमजा रहता, तो यहाँ अलिफ पर पे अलिफ आ जबर रहा जेर था। पेश रहता, अलिफ पे जबर जेर पेश रहता तो हमजा बनता। ठीक है, हाँ, तो असली शक्ल में आएगा कि अलिफ आएगा? अलिफ हमजा की शक्ल में रहेगा, अलिफ पे जबर जेर पेश रहेगा, यानी हमजा नहीं आएगा इसका मतलब? वो ओरिजिनल हमजा नहीं आएगा इसमें, मुनफसिल। यस, अलिफ वाला हमजा आएगा जी, अलिफ की शक्ल वाला हमजा आएगा। मा, अब आबिदुन मा आबुद, मा एक कलमा है, आबुद दूसरा कलमा है, छोटा मद है, आप 4 हरकत करके पढ़े, है ना। जितने मद है, अब आप ये सूरा कभी पढ़ेंगे, ये सूरा आप नमाजों में पढ़ने वाले, छोटा सूरा है, अक्सर पढ़ते हम। इसमें जुमला कितने मद है, आप मेरे को गिन के बताओ, ये सूरे में कितने जुमला कितने मद है, और पूरे मुनफसिल है, कितने मुनफसिल है, जरा गिन के बताइए। छह है सर। 7 है। 7 है सर। दोनों भी गलत, दोनों भी गलत। 7 है सर, 7 सही है, 7 है। 7 है सर, 7। ये छोटा सूरा है, 7 छोटा सूरा है, 3 लाइन का, 7 मध्य मुनफसिल है। छोटा सूरा है, 3 लाइनों का, 7 मध्य मुनफसिल है। 7 बार आपको मत करके पढ़ना है ना। हमारा सूरा ये पलक झपकते में नमाज में खत्म हो जाता है, पलक झपकते में, एक भी मत नहीं करना है हमारे को। किसको करना है मत, क्या जरूरत है मत करने की। मौलवी साहब कैसा पढ़े, और एक बार पढ़ा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा
किसका माइक खुला है? تعبدون किसका माइक खुला है? मुल साहब के साथ आप भी पढ़ रहे हो, पूरी क्लास खराब हो जा रही ना। आप घर में प्रैक्टिस करो बोल तो नहीं होता है, क्लास में कर रहे हैं आप। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ठीक है, पूरे 59 के साथ मत बेहतरीन तरीके से अदा करें. हम भी जो है जब भी आपको मत दिखता ना वहाँ पे उन्हें छाप दिया ना. हाँ, अगर आपको शरत और सबब नहीं भी मालूम है तो मत तो नजर आ रहा ना, कम से कम मत की अलामत तो नजर आ रही, मत की साइन तो दिख रही है आपको, है ना. आप उसको देख के तो कम से कम परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है ना. अब आपको क्या मालूम हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब जी. जो कारी साहब ने पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून, ये जो मादी असली है ना रून, हाँ अभी नहीं पढ़े हम, वो अभी पढ़ने वाले, कल पढ़ने वाले. इसको भी बहुत खींचा सर, बहुत खींचा. वो पढ़ने वाले हैं हम लोग, कल पढ़ने वाले. अच्छा अच्छा. कल बोल तो कल जुम्मा है, सैटरडे के दिन पढ़ेंगे इंशाल्लाह. इसलिए 5-6 हार कर उसको भी दे दी. हाँ मैं आपको अभी हम हमजा वाले मत पढ़ रहे हैं, अभी हम जज़म वाले मत नहीं पढ़ रहे. अच्छा जनाब, तो इंशाल्लाह उसका भी नंबर आ रहा है, तो इंशाल्लाह बताऊंगा मैं. तो आपको ये सूरे में 7 मद मिले, 7 मद मुनफसिल है ना. और तमाम सूरों में अभी हम जैसे ये इज़ा जा नसरुल्लाह है ना, ये है इज़ा जा. अब इज़ा में मद इसलिए, इज़ा के बाद हमजा नहीं है, नहीं तो वहां पे भी मद आ जाता था. जहाँ पे जहाँ हमजा नहीं आता वहां पे उन्हें खाली मद असली रहता, 2 हरकत. इज़ा 2 हरकत, जा 4 हरकत. क्यों? हमजा आ गया ना मद असली के बाद. नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा. अब आपको पूरे चीजें मालूम हो गए. मत का कहाँ है करना है, लामे जलाला का मोटा पढ़ना है, नसरुल्लाहि है ना. वरअयतन लीन अच्छा करना है, नास वरअयतन नास गुन्ना अच्छा करना, मध्य असली अच्छा करना, यद दाल पे खलखले सगरा अच्छा करना, खुलूना फी दी 2 मध्य असली, निल्लाई लामे जलाला पतला पढ़ना है, अफवाजा 2 मध्य असली है, जहाँ पे रोकने के लिए एक जबर गिरा के मध्य असली करे. फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा. गुन्ना अच्छा, उल्टा पेश 2 हरकत, मध्य असली मध्य असली मध्य असली. पूरा गेम जो है आप पूरे रूल्स फॉलो करो, खुद ब खुद आपकी तिलावत, आपका पढ़ना, आपका रेसिटेशन परफेक्ट हो जाती. पूरे रूल्स फॉलो करना. जितने पढ़े अभी तक हम 1 महीने में कितने पढ़े, बस थोड़े से पढ़े. ये क्या है हमारा खलखले का 8वां या 9वां है ना. पूरे जितने सबक पढ़े, जितने लेसन पढ़े, आप उसको अप्लाई करिए और सूरे अपने सही करिए. और जो है मैं आज आपको 2 मद बता दिया, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल. कल हम जब सैटरडे के दिन आएंगे और मैं आपको एक सूरा भी दूंगा, ये होमवर्क में आप जाके होमवर्क चेक करिए. कितने लोग देख रहे नहीं मालूम है, जो बोल करके आओ बोला वो तो आप लोग करके नहीं आ रहे हैं. अब क्या करिए, आप जुम्मे के दिन छुट्टी है आपको, आज पूरा दिन खाली है, कल जुम्मा पूरा खाली है. आप क्या करेंगे, ये जो सूरह बकरा हम शुरू करे थे,
کل میں بولا تھا آیت نمبر 50 تک پورا دیکھ کے آنا. اب آپ کیا کریے 51 سے لے کے 100 تک یا 150 تک 2 دن ہے نا, آپ پوری ایک ایک آیت میں دیکھیے مد کا ہے, مد کا نشان ڈالا انہیں. مد متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے تو ایک کلمے میں ہے نہیں ہے, شرط کیا ہے, سبب کیا ہے, ہر مد کی انالائز کریے. کیا کرنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ آپ کا کاپی ہے, یہ آپ کی کاپی ہے. ایک دوسرا بنائیے. ہاں یہ آیت نمبر لکھے یہاں پہ, آیت نمبر یہ ہے مد متصل, یہ ہے مد منفصل. آپ 51 سے شروع کر رہے ہیں نا, چلو کوئی بات نہیں. 51 کتنے متصل ملتے آپ کو؟ 2 ملتے, 1 ملتا. منفصل کتنے ملتے؟ آیت نمبر 52 ایک ملا تو ایک ہی ہے نا. 53 نہیں ملا تو ڈیش ہے نا. 50 ہر جگہ رہنا ضروری نہیں ہے. اب آپ پورے میرے کو جو ہے 100 تک کر کے آئیے, آیت نمبر 100 تک کریے آپ, 100 تک کر کے آئیے ہے نا. جہاں پہ بھی مد, اب سمجھو آپ 54 کر رہے تھے, آپ کو متصل ملا, آپ اس کو پڑھیے اچھا 4 رکعت سے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس میں شرط کدھر ہے, سبب کدھر ہے. سبب کدھر ہے, شرط کہاں ہے اس کی, سبب کہاں ہے اس کا. غور سے دیکھیے آپ, غور سے دیکھیے اس کو. ہاں انالائز, کہیں پہ کوئی مشکل پیش آئی, کہیں کوئی گچی آ گئی, کوئی چیز ایسی کوئی نئی آپ کو نظر آئی, آپ اس کو وہ آیت نمبر کو نوٹ کر کے لائیے. وہ آیت نمبر کو آپ کیا کریے, نوٹ کر لیجیے. یہ مول صاحب سے پوچھنے کا یہ آیت پہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ پورا 100 تک کریے. بلکہ 2 دن ہے, ایک دن 100 تک کریے, دوسرے اور 2 دن ہے نا, دوسرے دن 150 تک کریے. کیا کرنا ہے آپ کو, خالی ڈاٹ لگانا ہے نا. تو یہ کر کے یہ ایکسرسائز, تو آپ کو پورا سمجھ میں آ جائیں گا, متصل اور منفصل سمجھ میں آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائیں گا ہے نا, تو پھر میں آپ کو جو ہے یہ میں آج آپ کیا بتایا, یہ بتایا کیا ہے, ہم کیا کریں. سبب مد, یا یہاں سے بتا رہا ہوں میں آپ کو پورا مد ہے نا. ایک ہے مد اصلی, ایک ہے مد فروعی. فروعی بولتے ہو تمام بڑے مد. بڑے مد کے اندر 2 کمپوننٹ ہے, شرط مد, سبب مد. سبب مد 2 ہے, حمزہ اور جزم. حمزہ سے بننے والے 2 مد ہم پڑھ لیے, حمزہ سے بننے والے دونوں مد پڑھ لیے ہم, 1 اور یہ 2, یہ دونوں مد پڑھ لیے. 2 ہی مد ہے حمزہ سے. اب آ جاؤ جزم کی طرف, ہم جو ہے سیٹرڈے کی کلاس ہماری متعب ہے. اب میں یہ شاخ پڑھوں گا پورا, کون سی شاخ, یہ والی شاخ پڑھوں گا. سبب مد جزم سے بننے والے مد پڑھیں گے ہم. 2 مد یہ پہلے فیز میں پڑھیں گے, اور پھر بعد میں پھر میں آپ کو اس کے باقی کے اور 4 مد باقی ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن ہم سیٹرڈے کے دن یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت سیکھنے والی چیز ہے. یہ سبھی امپورٹنٹ ہے. تو ہم سبب مد سکون سے بننے والے مد پڑھیں گے سیٹرڈے. صحیح ہے. تو انشاءاللہ, اور میں آپ ہوم ورک فالو کریے. کیا ہوم ورک میں ڈال رہا ہوں, ہر آدمی ہوم ورک دیکھے اور کرنے کی کوشش کرے. 2 دن ہے, میں سورہ بھی ڈالوں گا, ایک یا چھوٹا یا سورہ ہے تو 2 آپ اس کی پریکٹس بھی کر کے آنا اچھے طریقے سے. ہاں اچھا, اور میں نے آپ لوگوں کو گروپ میں دعائیں بھی ڈال دی ہیں, شروع کی اور آخری کی, تاکہ آپ اچھی پریکٹس کر لیں ہے نا. اچھا پڑھنے کی جو ہے آپ اس کی پریکٹس کر لیں ہے نا. اب دیکھیں یہ پہلے کی یہ دعا بھی ڈالی ہے میں نے, تاکہ اب میں آگے سے آپ لوگوں کو پڑھاؤ بولا تو آپ یہ دونوں دعائیں پڑھانا, ترجمے کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے, آپ جا کے گروپ میں دیکھ لیں. اب آپ یہ دعا پڑھیں گے, اب آپ کو کوئی چیز چھوٹی نہیں. ربی ہے نا,
बा पे सख्ती रहना, रब्बिश रहली सदरी, सदरी, ली में मध्य असली है, सदरी में दाल पे खलखल सुगरा है, री में मध्य असली है। वयस्सिर ली अमरी, ली में मत डाला उन्हें, क्यों? मध्य असली के बाद हमजा है, दूसरे कलमे में हमजा है, उन्हें मत डाला। वयस्सिर ली अमरी, अब नहीं पढ़ेंगे आप इसको, वयस्सिर ली अमरी नहीं पढ़ेंगे अब, यस्सिर ली अमरी। वहलुल उक़, उक़ खलखल सुगरा हो रहा, खाफ पे खाफ साकिन, दतम मीम पे गुन्ना, मिन लिसानी, दो मध्य असली, लिसानी, है ना। अब एक ही चीज आप छोड़ना नहीं है कि खादा, यफ़क़हू क़ौली, खाऊ में क्या है? लीन है, ली में क्या है? मध्य असली। पूरा आप देखो, एनालाइज करिए, दुआ को एनालाइज करो आप। कोई मद है नहीं छोड़ना, खलखला है नहीं छोड़ना, गुन्ना है नहीं छोड़ना, लीन है नहीं छोड़ना, एकदम से उन्हें खुद सही हो जाता। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, है ना। उसी तरीके से ये इसको भी एनालाइज करके आई। मैं आपके उसमें दूसरा भी वर्जन डाला अच्छे वाला, आप ग्रुप में देखिए मैं क्या डाला, उसके लिहाज से उसकी अच्छी प्रैक्टिस, दुआओं की भी अच्छी प्रैक्टिस करके आइए। 3 काम है करने के, एक तो ये दुआओं को याद करना, वो तो खैर आप अपनी फुर्सत के लम्हों टाइम पे याद करिए। आयत नंबर 51 से लेके 150 तक उसको एनालाइज करिए, और जो सूरे में भेज रहा हूँ उसको पढ़ने की प्रैक्टिस करके, सूरे की एनालाइज बना के, सूरा पढ़ के रिकॉर्डिंग करके, बहुत से लोग भेज रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ उनके, सबके सुन रहा हूँ मैं, मेरे को मालूम है कौन कहाँ जा रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह ये असर खत्म हो गया और मैं हर एक की फिर एनालाइज करके बताऊंगा कौन कहाँ कमजोर है, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, मैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। चलिए ये दुआ पढ़ के आज खत्म करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब लोग माइक ऑन करें, माशाल्लाह दुआ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और बड़ी ही इज्जत वाला है, और बड़ी इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से, और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं, बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, सारे जहां का पालने वाला है, सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी मेहनत का अल्लाह जो है सही का आमीन आमीन आमीन।